बापू बोला है अमर भाई पाटिल भाई अब बैनर पर आइयो समझो। ठीक है सर। फोटो नहीं पाड़ो તમે આ તો લાઈને પણ એમાંથી ને અવાજ નહીં આવે તમે વગેરે બાબુ તમે આમ હાથ તો દેખાડો બેનર લગાવો બહુ મસ્ત લાગે છે બાપુ सीधा पार्ट के दो 99 हाँ एक बार ये दे दो काम लगेगा अपन देते हैं Right. वो कड़े भी कोई भी रहते हैं ना उन्हें जय माता जी बाबा पाला आ गया नाना बहनों ओळखे છે मैं तो भूल गया था उससे यार दरवाजा में आ गया बताइए कोई बात આયા મારો આમ છપ્પનની છાતી થઈ ગઈ તમે આવી ગયા એટલે પહેલી વાર એડવાઇઝરી જારી કરી છે બધા માસ્ક પહેરી લે અને પોતપોતાના મોબાઈલ સાયલેન્ટ મોડ ઉપર રાખે કે કોઈ પણ કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે ભગવાનને યાદ કરીને કરીએ છીએ તો આનો વિધિવત પ્રારંભ કરવા માટે દીપ પ્રજ્વલન માટે હું મંચસ્થ બધા જ મહાનુભાવોને અને આજના મુખ્ય અતિથિ આ બાજુ થોડું પ્લીઝ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि
संजय भाई વિમોચન કાર્યક્રમમાં પધારેલ મારા ટ્રાન્સપોર્ટ પરિવાર વડીલો મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલ આજના મુખ્ય અતિથિ વાઘોડિયા ધારાસભ્ય અને મારા કાકાશ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુ આજના કાર્યક્રમના ગેસ્ટ ઓફ ઓનર અને અખિલ ગુજરાત ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ શ્રી મોહનસિંહ ચૌધરી મોહનસિંહજી બિસુનું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન અને સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે અત્રે પધારેલ પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી પીએમ વાઘેલા બાપુ, શ્રી સુરેન્દ્રસિંહ યાદવ, શ્રી સુભાષ કૌશિકજી, શ્રી સંજયભાઈ ચૌધરી, શ્રી પિયુષભાઈ શર્મા અને પૂર્વ જનરલ સેક્રેટરી હરબીરસિંહ વિટ્ટુભાઈ, શ્રી દત્તુભાઈ પટેલનું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અત્રે પધારે બધા મારા વડીલો અને મિત્રો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ સાથે આગળનું કામ સંસ્થાના મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ ચૌહાણજીને વિનંતી કરું છું કે આગળનું કામગીરી ચાલુ કરે. જય માતાજી. હલો, શાબ્દિક સ્વાગત પછી આપણે વિધિવત સ્વાગત કરીશું. આપણે ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુ ધારાસભ્ય છે, લોકલાડીલા નેતા છે, પણ સાથે સાથે આપણા ટ્રાન્સપોર્ટના મેમ્બર પણ છે. એટલે આજે આપણા પરિવારની વચ્ચે પધારેલા છે. તો હું દરખાસ્ત મૂકું છું કે બાપુને આજના સમારંભના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે. તો એના માટે ટેકો ધારાસભ્યો આપે તો એમને આજના સમારંભને અધ્યક્ષ પણ બનાવી દઈએ. ધન્યવાદ. તો આજની આપણી એજીએમ અને ડાયરેક્ટરીનું વિમોચન આપણા ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુના અધ્યક્ષ પણ હેઠળ થશે. હવે હું સર આ બાજુ સામે બાપુ એ બાજુ નહીં વાંધો નહીં ઓકે જી સર હા 1 by 1 આવો. ઓકે પાછળનો બેનર લો. હા બેનર લો. ઓકે સામે દેખા દો તો ત્યાં જ પડ્યું રહેશે. સર આ બાજુ થોડું હા દાનિયા બસ્તી રહી છે. બેનર લેજો આપણે. બેનર આપણું મેઇન છે કમ્પ્લીટ. દાનિયા બધા સર આપજો એક જણ આપ બીઆરટી પ્રેસિડેન્ટ संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजू भाई कटारिया का स्वागत करने के लिए मैं अपने कमेटी ताली बजाओ छात्रों तालियां तो बजाते ही रहिए. ओके रुको 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 ओके संस्था तालियों की आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए. एजीएम के बाद भोजन की व्यवस्था रखी है हम लोगों ने.
हाँ जी। संस्था के ज्वाइंट सेक्रेटरी सर एक जगह हमारी एक इस तरह। हाँ हाँ बस। जोरदार तालियां तालियां बजाते रहिए। हमारे हाँ बाजू। जोरदार तालियां बजाते रहिए। हम सब ट्रांसपोर्टर की आदत बहुत अच्छी होती है। आप कई बार बोलते हैं तो थोड़ा तालियों के लिए तो जोरदार तालियां। श्री सतवीर सिंह दहिया जी, श्री बलवीर जी, श्री धर्मचंद अग्रवाल जी और ऐसे ही हेलो जैसे कई नाम इसमें शामिल हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट अपनी जगह पर खड़े होकर मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। नई कमेटी ने अपना पदभार संभाला था। उसके बाद बीआरटीए जो बिल्डिंग थी हमारी उसका रिनोवेशन का काम सबसे पहला किया था, क्योंकि वो बिल्डिंग का काफी पुरानी हो गई थी तो उसमें काफी सारे डैमेजेस छत वगैरह में और उसमें हो गए थे। मई 2022 में हम लोग अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करने के लिए अहमदाबाद गए थे। जुलाई 2022 में अपने ट्रांसपोर्ट परिवार और सब भाइयों में एकता और भाईचारा बना रहे, सुख शांति बनी रहे, इसके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा बीआरटीए के ऑफिस में आयोजित की गई थी। अगस्त 22 में पिछला साल आजादी अमृत महोत्सव के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के वडपण हेठल। उसमें हमने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया बीआरटी ऑफिस में। और इस बार हर घर तिरंगा अभियान जो भारत सरकार की तरफ से चलाया गया था अगस्त में ही, उसमें भी बीआरटी ने पार्टिसिपेट किया गदा सर्कल पे, जिसमें होर्डिंग वगैरह भी लगाए गए थे। एक हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है ई-वे बिल। ई-वे बिल एक ऐसी लटकती हुई तलवार है सभी के ऊपर, जिस तलवार की एक धार से 10,000 20,000 रुपए से लेके करोड़ 2 करोड़ रुपए तक का भी मार किसी भी ट्रांसपोर्टर को इमीडिएटली पड़ सकता है, जिसका सब लोग देख ही चुके हैं कि गति ने 1.25 करोड़ रुपया भरा था। ऐसे उसी बारे में जागरूकता अभियान लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए बीआरटी मेंबर्स को, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है,
एक सेमिनार का आयोजन हम लोगों ने ई वे बिल अवेयरनेस के लिए किया था होटल बरोड़ा रेजिडेंसी अलकापुरी में अक्टूबर 2022 के अंदर। दूसरा, गवर्नमेंट के जितने कायदे कानून हैं सब हम लोगों पे लागू पड़ते हैं। हम ट्रांसपोर्टर लोग हैं, हम लोग धंधा करना जानते हैं, लेकिन कांग्रेस इसके ज्यादा कायदे कानून जो भी सरकार के हैं उनमें इतना ज्यादा मालूम नहीं पड़ता है। तो टीडीएस और टीसीएस ये दो के बारे में हमारे मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा मालूम हो, किसी को आगे परेशानी नहीं हो, इसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ मिलके हमने टीडीएस भवन जो काला घोड़ा में है वहीं पे एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसका लाभ बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने लिया अक्टूबर 2022 में। हमारे जो अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों के, ट्रांसपोर्टर परिवार के जो होशियार बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए थे या उसके अलावा खेलकूद में अच्छी सिद्धियां प्राप्त की थी या और किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें अच्छे जिन्होंने मार्क्स लिए थे, ऐसे सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमने बीआरटी ऑफिस के अंदर एक अवार्ड फंक्शन रखा था अक्टूबर 2022 में, जिसमें अपने बड़ौदा ट्रांसपोर्ट परिवार के सभी होशियार बच्चों को सम्मानित किया गया था। एक सभी हम सब लोग जानते हैं गोल्डन चौकड़ी हमारा बड़ौदा में ट्रांसपोर्ट का हब है। ज्यादातर ट्रांसपोर्टर वहीं पे ही बसे हुए हैं। हजारों की तादाद में डेली वहां पे ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं, जो ऑफिसेज है उनका स्टाफ रहता है। उसके अलावा तकरीबन 40 से 50 हजार की एस्टिमेटेड पब्लिक वहां से रोज गोधरा साइड जाना हो तो वहीं से बस पकड़नी पड़ती है, वापी साइड जाना हो तो वहीं से, अहमदाबाद साइड जाना हो तो वहीं से बस पकड़नी पड़ती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वच्छता के बहुत बड़े आग्रही हैं। उनके स्वच्छता अभियान का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन थोड़ी हम लोगों की कमनसीबी रही कि गोल्डन चौकड़ी पे अभी तक कोई सार्वजनिक शौचालय वहां पे नहीं बन पाया। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जिससे कि खासतौर से जो हमारी माताएं बहनें हैं जो वहां से डेली ट्रैवल करती हैं उनको कभी कभी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहला जो बड़ा काम था वो कॉर्पोरेशन के साथ में मिलके और अपने जो भी हमारे कॉर्पोरेटर भाई हैं उन सब के साथ में मिलके किया, जिसके अंदर से हमारे अपने ही ट्रांसपोर्टर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और म्युनिसिपल वार्ड नंबर 4 से कॉर्पोरेटर श्री अजीत भाई ददीज और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री हितेंद्र भाई पटेल, इनका बहुत अच्छा सहयोग मिला और उनके सहयोग से वहां पे गोल्डन चौकड़ी पे हमारा सार्वजनिक शौचालय पास हो गया, जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन भी उसी पीछे कर दिया था। और ये हमारे लिए जो एक तरीके से देखा जाए जो काम 40 साल में नहीं हो पाया था, वो आप सब लोगों के साथ सहकार और आशीर्वाद से ये नई कमेटी ने 1 साल के अंदर ही कर दिया। तो मेरे ख्याल से इस चीज के लिए एक जोरदार तालियां अपने प्रमुख श्री भारद्वाज सिंह वाघेला बापू के लिए खासतौर से, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं की भागदौड़ और साथ सहकार से ये सब संपन्न हो पाया है। अब क्योंकि हमारे बीच में बापू बैठे हैं, आज के मुख्य मेहमान और हमारे समारोह के अध्यक्ष, मैं गोल्डन चौकड़ी का नाम निकला ही है, एक रिक्वेस्ट और बापू से करना चाहूंगा। बापू, गोल्डन चौकड़ी पे सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 40-50 हजार तकरीबन पब्लिक डेली इधर से उधर जाती है और बहुत सारे ऑफिस है जो रेगुलर रहते हैं। पीवाना पानी हजू क्या समस्या है बापू, पीवाना पानी कोई इंतजाम नहीं जो आपना कोटा में थी। बस थैंक यू बापू, जोरदार तालियां बापू। ये पुण्यનો કામ રહેશે અને એનો લાભ આપણા ટ્રાન્સપોર્ટર ભાઈઓ જ નહીં, ત્યાંથી આ જેટલા પણ મુસાફરો જાય છે એ લોકોને પણ ડેલી લાભ મળશે। ધન્યવાદ બાપુ। એ પછી નવનિર્વાચિત ધારાસભ્યો જે ઇલેક્શન 2022 માં ચૂંટાઈને આવ્યા, એમની શુભેચ્છા મુલાકાત આપણે સૌથી પહેલા શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુ, એ પછી બાલુભાઈ શુક જે અત્યારે દંડક પણ છે, શ્રીમતી મનીષાબેન વકી, શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા ની શુભેચ્છા મુલાકાત અમે લોકોએ જનવરી 2023 માં લીધી। श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर और गुरुद्वारा नानकवाड़ी साहिब के 100 साल शताब्दी दिवस पर जो समूह संगत निकली थी उसका स्वागत हम लोगों ने फतेहगंज सर्कल पर किया। एक सामाजिक
सौहार्द बनाने के लिए गणतंत्र दिवस पर ध्वजवंदन बीआरटीए ऑफिस में किया गया 26 जनवरी को। और जैसा कि बताया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ई-वे बिल है, तो ई-वे बिल में दोबारा से एक जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस के लिए हमने वापस बीआरटीए में फरवरी 2023 में एक बीआरटी ऑफिस के अंदर ही अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया। उसका बिल आप काफी सारे मेंबर्स मौजूद थे जिन्होंने लिया। और जो हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती है, पिछले 1 साल के अंदर हमने 10 कारोबारी मीटिंग्स की है। तो आप सब लोगों के साथ सहकार से ये मुख्य काम थे जो हम लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर किए हैं। आप लोगों का साथ सहकार मैं मानता हूं इसी हिसाब से आगे मिलता रहेगा और आगे भी इस तरीके के हम काम करते रहेंगे। बीआरटीए में आज के एजीएम के एजेंडे में जैसा कि आप सब लोगों को सर्कुलर पहले भेज दिए गए थे, सबको मिल गए, उसका जो ऑडिट बैलेंस शीट थी और ऑडिट रिपोर्ट थी वो सब लोगों को मिल गई है। एक प्रोटोकॉल के मुताबिक, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, 48 घंटे पहले तक जिनको ऑब्जेक्शन होता है उनको लिखित में जानकारी देनी पड़ती है, सर्कुलर में दिया गया था। तो अभी आज सुबह तक संस्था में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, इसलिए उस ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट को मान्य करार दिया जाता है। पिछले कई साल से हमारी संस्था का ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट SF ताई एंड एसोसिएट्स सयाजीगंज वो देखते आ रहे हैं। तो वो संस्था को अच्छी तरीके से जानते हैं, कई सालों से हैंडल कर रहे हैं। तो अगले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भी उन्हीं को मान्य करार दिया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर। स्वागत स्वीकृति दें। आज के हमारे मुख्य मेहमान और अभी हम विमोचन का कार्यक्रम करेंगे। मेरा आप लोग जो हमारे डोनर्स हैं उनको फ्रंट रो में जगह दी जाए। बैक इनर पेज की एडवर्टाइजमेंट हमारे अपने ही ट्रांसपोर्टर भाई और हमारी कमेटी के सभ्य अब मैं इन स्टेज पर आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करने के लिए एक बार वापस से स्वागत विधि हम लोग करना चाहेंगे। हाँ भाई। भारत माता की टाटा मोटर्स के अशोक लेलैंड के तालियां तो बताते ही हैं। सर इस तरफ, सर आप सर ऊपर आई जाओ ना ऊपर। हाँ
10 मिनट। आज की तारीख में हमारे 1046 मेंबर हैं। अभी मैं श्री भगवान दास शर्मा जी और पप्पू भाई, श्री बलवान सिंह राजलीवाल जी, श्री बजरंग सिंह राजपूत जी, श्री मांगीराम पूनिया जी, विजय कुमार मील, श्री पवन कुमार शर्मा जी, श्री अश्विनी कुमार, श्री भीम सिंह यादव, श्री नरसिंह राजपूत, श्री शिव कुमार शर्मा, श्री जिलेश सिंह स्वामी, श्री भूप सिंह चौधरी, श्री योगेश शर्मा, श्री प्रवीण दादूभाई गढ़वी, श्री भावेश अशोक शेवरान और राजेश शर्मा जी। इन सब मेंबर्स का बहुत बड़ा सहयोग हम सभी लोगों को रहा है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत कीजिए। आप सब लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। अब हम और आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। सभी महानुभावों से कारण छोड़ी दे છે ભાઈ, આ માઈક બદલો ને આવે ને જતો રહે। एक बार जोरदार तालियों। आज का बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा 2022-23 का एजीएम और जो बुक का आज विमोचन हुआ, उस कार्यक्रम के अंदर मूल्य अतिथि विशेष का निमंत्रण दिया। इसलिए आप सब लोगों का, एसोसिएशन की बॉडी और एसोसिएशन के सारे भाइयों का और मेरे ट्रांसपोर्ट भाइयों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रेसिडेंट भारद्वाज सिंह, पीयूष शर्मा जी, एक्स प्रेसिडेंट, अखिल गुजरात एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट श्री मोहन सिंह जी, एक्स प्रेसिडेंट श्री संजय चौधरी जी और यहाँ जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई पधारे उन सबको मेरा हृदय से प्रणाम। मुझे निमंत्रण देने के लिए जो ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट और सारे भाई आए हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई हमारी डायरी बुक का विमोचन और एसोसिएशन का 22-23 का जो कार्यक्रम रखा है उसमें आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं खुद भी ट्रांसपोर्टर हूँ, एमएलए बाद में हुआ, पहले तो ट्रांसपोर्टर भाई मेरे सब मुझे यहाँ बुलाए और मेरा यहाँ उपस्थित रहना नहीं हो तो मुझे भी बड़ा दुख होगा। इसलिए मैंने बोला कि भाई आप थोड़ा कार्यक्रम जल्दी करो। मेरी उपस्थिति हमेशा ट्रांसपोर्टर भाइयों के साथ ही है और बड़ा अच्छा लगता है जब ट्रांसपोर्टर भाइयों को मिलते हैं। और अपने बड़ौदा के इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर भाई आए हैं और ये यूनिटी देख के मुझे बहुत अच्छा खुशी हुई और ऐसी यूनिटी आगे भी बना के रखना। आज की जो भी सिचुएशन मार्केट की है, मैं आप लोगों को राय नहीं दे रहा हूं पर एक सजेशन दे रहा हूं कि अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को छोटी छोटी समस्या बहुत है। ट्रांसपोर्टर भाइयों की कोई जगह पे गिनती नहीं होती, ऐसा है कि नहीं है? उसकी कमजोरी अपन लोगों में ही है। नहीं तो ट्रांसपोर्टर एक ऐसा बिजनेस है
कि सरकार का पहिया भी, अगर ट्रांसपोर्टर का पहिया रुक जाए तो सरकार का पहिया भी रुक जाए। रुके कि नहीं रुके? अगर ट्रांसपोर्टर में यूनिटी है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे आदमी की जीवन जरूरियात की चीज हो, तो हर चीजों में ट्रांसपोर्टर का रोल बहुत अहम रहता है। फिर भी अहम रोल के बाद भी आज भी ट्रांसपोर्टरों को कोई, सरकार की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, सरकार सब कुछ दे रही है, पर कई कई जगह पे जो भी मुश्किल ट्रांसपोर्टर भाइयों की है उसकी सुनवाई नहीं होती है। छोटी छोटी चीजें हैं। आज कोई भी ट्रांसपोर्टर कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर गया है तो उसको कोई भी आ जाएगा, दो डंडा भी मार लेगा, गाली भी दे देगा। ये सारी छोटी छोटी समस्या में हम लोगों को एकत्रित होना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए कि भाई हमारा ट्रांसपोर्टर भाई को कहीं पर भी छोटी मोटी दिक्कत आई तो हर एक भाइयों को उसको साथ में खड़ा रहना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप 25 ट्रांसपोर्टर जाके खड़े हो जाएंगे ना तो भी उसकी इफेक्ट बहुत अलग होती है। आपका कोई ट्रांसपोर्टर भाई का पेमेंट नहीं दे रहा है, वो ट्रांसपोर्टर अकेला जाएगा, उसकी जगह पे 25 ट्रांसपोर्टर जाएंगे। अपने को झगड़ा नहीं करना है, दादागिरी नहीं करनी है, पर 25 ट्रांसपोर्टर साथ में जाएंगे तो उसको भी लगेगा कि मैं इसका पेमेंट नहीं दूंगा तो कल से मेरे वहां कोई गाड़ी नहीं लगेगी। पर अपने वहां उल्टा है कि भाई आप उसका पेमेंट मत दो, मैं गाड़ी लगा देता हूं, आप चिंता मत करो। अभी बड़ौदा टैंक लॉरी एसोसिएशन का टेंडर था एलएबी का इस साल ही, उसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सारे भाइयों ने जो मेहनत की और मेहनत का रिजल्ट मिला, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी ये टेंडर ये 1 तारीख को खत्म हुआ। उसमें बड़ौदा टैंक लॉरी एसोसिएशन ने नक्की किया कि भाई जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है और एसोसिएशन के मेंबर है उन्हीं लोगों को टेंडर भरने का राइट है। कोई कहीं से भी डाल देगा तो उसको काम एसोसिएशन नहीं करने देता है। इसमें अपने 2 ट्रांसपोर्टर भाई को समझाने के बावजूद भी उन्होंने टेंडर डाल दिया। एक कोई हरियाणा के भाई थे, एक कोई दिल्ली के थे और एक अपने बड़ौदा के कोई थे। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इनको काम नहीं करने दिया। इन्होंने काफी चिट्ठी लिखी, पीएमओ तक चिट्ठी लिखी, फिर भी ये एसोसिएशन झुका नहीं। फिर सब लोग मेरे पास आए कि भाई हम लोगों ने 40-40 लाख रुपया ईएमडी भर दी है, तो हमारी ईएमडी बचाने के लिए हमें कुछ मदद करो, एक गाड़ी दे दो। तो ये एसोसिएशन के पास जाओ, एसोसिएशन अगर आपको माफ करता है और एक गाड़ी देता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 3 ट्रांसपोर्टर को हेल्प की, बाकी वो लोग गाड़ी लोड नहीं कर पाए। और सारे ट्रांसपोर्टर जितने भी लोकल थे उनको 5-5 गाड़ी जो नियम के खिलाफ जाके सबको दिलाई। तो ये एक एकता की ताकत है। आज अपने वहां क्या हो गया कि एक गाड़ी कोई कंपनी वाला मांगेगा तो उसकी जगह पे 10 गाड़ी पहुंच जाएगी, तो वो तो फिर कोई भाड़ा बढ़ने वाला ही नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि भाई पानी की समस्या जो भी ट्रांसपोर्टर भाइयों ने बताई वो मुझे आप एक लेटर पे लिख के दे दो, क्या क्या अपने को पानी की अलावा भी कोई सुविधा चाहिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खाली मुझे चिट्ठी लिख के दे दो, आपको क्या क्या समस्या है और क्या काम करवाना है, वो सारी सुविधा हमारे तरफ से हो जाएगी। और ज्यादा ना कहते हुए मेरे जो भी ट्रांसपोर्टर भाई यहाँ उपस्थित है, ट्रांसपोर्टरों के साथ हमेशा मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। और मुझे एमएलए नहीं, आपका भाई समझिए, कभी भी मेरी जरूरत पड़े, कहीं पर भी जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। दूसरा, हम लोग वागेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर साल समूह विवाह करवाते हैं। इस साल 30 अप्रैल को 501 कन्याओं का समूह विवाह अनगढ़ गांव के पास रामपुरा में बहुत धामधूम से होने जा रहा है। अगले दिन
29 तारीख को डायरा है, उसके अंदर माया भाई और बहुत बड़े बड़े कलाकार भी आने वाले हैं। तो आप सारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को दोनों दिन वहां पर समूह लग्न में आइए, ऐसा मेरा निमंत्रण है। और ज्यादा ना कहते हुए मुझे एक दूसरे कार्यक्रम के अंदर जाना है और आपने मुझे फिर से, मैं आप सबका हृदय से आभार मानता हूँ मुझे यहाँ बुलाया इसके बदल। जय माता जी, जय माता। धन्यवाद बापू, आपके इन शब्दों ने एक नया जोश हम लोगों के अंदर भर दिया। इसमें हमारे बीच में हमारे वडील दिलीप भाई खत्री पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। AK मिश्रा जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और भी जो सभी लोग पर उपस्थित मेरे सभी सीनियर और सामने विराजमान भी सभी मेरे आदरणीय सीनियर महानुभाव। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बोला हूँ, बहुत कुछ सुना है, तो अब कुछ नया बोलने को तो है नहीं, पर अनुभव साझा करने की जहां तक बात है तो आज सिर्फ 1 मिनट में अपनी स्पीच को मैं पूर्ण करता हूँ। सुरेंद्र यादव जी, PM वाघेला बापू जी, सुभाष कौशिक जी, सतबीर चौधरी जी, दिवंगत संजय चौधरी जी हो या इमीडिएट एक्सप्रेशन पीयूष शर्मा हो, जब से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई है, चालू हुई है, एक्स सेक्रेटरी दत्तू भाई, बिट्टू भाई, जितने भी लोग हैं, जो भी आए, जो भी रहे, जो भी हैं, सबने अच्छा ही काम किया अपने अपने हिसाब से। पीछे भी सब अच्छे काम हुए, वर्तमान में भी सब अच्छे काम ही हो रहे हैं और भविष्य में भी सब अच्छे काम ही होंगे। तो संस्था में साथ रहते हुए हमें हमेशा संस्था के सभी कार्यों की सराहना ही करनी, साथ में रहना। और जैसे कि हमारे चीफ गेस्ट कह के गए, कैसे हम हमारी मजबूती को बढ़ाएं, हमारे भाईचारे को बढ़ाएं, उसी बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए, संस्था के नियमों का सम्मान करते हुए और आपसी भाईचारा हमारा बना रहे, आगे हमारी एकता बनी रहे, यही आशीर्वाद प्रभु का बना रहे। उसी प्रकार से हमको भी हमारा व्यवहार, आचरण, शिष्टाचार बनाए रखना है। धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए सभी मेहमान, श्री पीयूष शर्मा जी, टाटा के प्रेसिडेंट महेंद्र पटेल जी और मतलब दूसरे अशोक लेन के, और सभी पदाधिकारी, राजू भाई, हमारे प्रमुख श्री BRPA के भारद्वाज सिंह वाघेला जी, बिट्टू जी, KK शर्मा जी, दत्तू भाई और हमारे पूर्व प्रमुख श्री वाघेला जी, अन्य सभी पधारे हुए ट्रांसपोर्टर भाइयों को प्रणाम। आज का जो अपना AGM और डायरेक्टरी का विमोचन था, उसके हमारे चीफ गेस्ट आए, इससे हमारा बहुत ही गौरव और मान सम्मान बढ़ा। और उन्होंने गोल्डन चौकड़ी पर पानी का कनेक्शन और वो शौचालय की व्यवस्था के लिए बोल दिया है। जो लेटर में जो लिख के देंगे वो व्यवस्था वो करवाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और दूसरा, आज के जो AGM है, इसमें आप सभी भाई अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए, उसको लिए भी मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और सभी पहले भी जो ज्यादा नहीं बोलते, अभी की भी जो BRPA की जो बॉडी है वो एकदम यंग बॉडी है, बहुत ही प्रगतिशील है और सभी पहले से भी 40 साल से 45 साल से कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो सभी ने अपने अपने कार्यकाल में सभी ने अच्छा काम किया, ये भी अच्छे कर रहे हैं, आने वाले भी सब अच्छे करेंगे, अच्छा ही करना चाहते हैं। इसी के साथ ही जय गुजरात, जय भारत। अपनी BRPA 2022-2023 की AGM और ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिक का विमोचन का कार्यक्रम में पधारे थे अपने मेहमान, वाघोडिया के धारा सभ्य और अपने एसोसिएशन के
सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला, उनको कहीं जाना कहीं जो चले गए, फिर भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने यहाँ मंच पे पधारे हमारे महानुभावों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उप प्रमुख श्री चौधरी मोहर सिंह बिसु का भी मैं स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं राजेश कटारिया, बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से आप सबका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय हमारे निमंत्रण को सम्मान देकर पधारे। मैं हमारे बीआरटीए के पूर्व प्रमुख एम वाघेला बाबू, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री सुभाष कौशिक जी, श्री संजय भाई चौधरी जी, श्री पीयूष भाई शर्मा जी, हरप्रीत सिंह बिट्टू जी, दत्तू भाई पटेल, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ यहाँ पधारे हुए मेरे सारे ट्रांसपोर्ट भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। रिया रेवती के मैनेजमेंट, यहाँ पधारे हुए फोटोग्राफर, साथ में यहाँ पे जो बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड थे, इन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन सब की वजह से अपना यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ है। किसी भाई को बोलने का मौका चाहिए था, पर उनका प्रोटोकॉल की वजह से हमने उनको मौका नहीं दिया है। इसके लिए मैं दिलगिरी भी व्यक्त करता हूँ। परंतु अगर किसी का नाम अगर लेने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। शायद अपना एक कार्यक्रम में यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। लेफ्ट साइड में अपना खाने का कार्यक्रम रखा हुआ है। हर कोई मुझे लेके यहाँ से जाए और इस समय की इस कार्यक्रम की मैं पूर्ण हूँ। धन्यवाद। बापू क्या बापू बापू से क्या बात भाई बापू माइक पर बोलो बापू तो बापू आ जाओ बस एक मिनट खड़े रहना भैया और दो चार आ जाओ बापू आ जाओ आइए आइए नरसिंह जी बापू दीपक भाई तमें पण આવી जाओ। दीपक भाई चलो बीआरटीए जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, बीआरटीए जिंदाबाद। मेरा कैसे वाली ने पूछी एक रोटी लेवानी अरे सुरेश भाई संजय को लाल लेने भी समाज खावा भी ऊपर वेस्ट ना
काला काला दिख रहा है, गुलाब जामुन दिख रहा है। आप वाली खा लो। आप